doing through this one, through mobile only. So welcome all of you to this product training session by Chakraborty sir, and also I like to thanks my management team also, so that they gave me the opportunity that I could be a part of this program. And as usual, I like to give my introduction. Myself, Omjan Buragohai, Marketing Manager, Northeast, and I am looking after entire Northeast 7 states. And also, I am based at Guwahati branch office. So, as you know, yesterday Dr. Chakraborty sir had to discuss about the topic on, like, say, on acidic and the alkaline pH, that the pH level of our body. He talked about that topic, and then today also I think he will continue with that only. So, as we know that acidic is very harmful for us, and we need to be our body to be in alkaline. So, as a alkaline, as a marketing manager, I will suggest that you please go for our this one, for our alkaline water bottle. As you know that with that bottle, if we take water from that alkaline bottle, then automatically the pH level, which is used, if our body pH level is become acidic, then by taking the water of our alkaline bottle, it will convert to alkaline. So it will help us, because if we have acidic in our body, then what happens? Diseases and disorders can easily affect us, and it also creates some chronic diseases like diabetes, like that. It will form regularly. So we should go for our alkaline bottle also, because you can promote our alkaline bottle as well. And till Dr. Chakraborty sir, he will join us after 10-15 minutes. So till then, I like to share about our some, say, about marketing tips. Like today I am going to say about team building, or just a minute where I am connected with my PC actually. So better to be in this one. Okay. So today I am going about to say about some teamwork. Actually, I like to talk few things about teamwork. So before talking about teamwork, we should know what is team. So what is team that is necessary? If we, in simple words, we can say that a group of people who have committed, who have a commitment to produce a result, we can call as a team, right? So then comes what is teamwork. So teamwork is the ability with others to achieve a common goal. Means if we all have a common goal, then if we cooperate and communicate each other, and if we achieve that goal, then we can say we are working as a teamwork. That is what a teamwork is. And then also after teamwork, it comes when we are doing teamwork. Then what are the benefits we can get from a teamwork? Benefits are, there are a lot of benefits, like, say, quick solution, because we can if we work as a team, then we can get the solution in a quick way. And then also the productivity will be also quick improve, because there are a lot of people, they have their own minds, and they can give a lot of suggestions, and with getting all the suggestions, we can get the productivity, improve productivity. And then also the workload, which is the workload, if a single person to achieve a goal, that workload is divided among the team leader, all the team members, so the workload will also be low. And there are also diversity of ideas which I told you earlier, that many people will have different ideas. So if we get our different ideas, after getting that different idea, we can choose from them that which one is better, and then we can work accordingly. And then also we can take better decisions after getting those ideas, because all people will think different way, and then when we get lot of ideas, uh, we can choose the best one from that. And then also there will be motivation, because uh,
all the people, all the team member will at the same time they cannot be demotivated, because some will be demotivated, some will be always motivated. So when that demotivated people will come contact with that motivated one, that motivated person will make him motivated to make him that person also motivated, and it will help him uh, to get rid of that demotivated. So, and also learning is also there. We can learn many things because all peoples are, as I told you, they all have different ideas, and they also they they all are in different way. They are best at their works, and we can learn from each other. So this is the benefits which we can get from a teamwork, and also uh, to get it, if we want to develop our team, what are the things we need to do? There are 5 stages in team development, as you know. The stage one is forming, then stage two is then storming, then after stage two, then comes norming, then performing, then adjourning. These are the 5 stages with which we can develop a team. So if we elaborate the stages, then for forming, in forming stage, what is it we have, what happens actually? In this stage, most team members are positives, and they are also polite. Some are anxious as they haven't fully understood what work the team will do, because they have no any idea that what they are going to do. Others are simply excited about the tasks ahead. They simply getting excited. Some people are there, and as a leader, you play a dominant role at that stage, because at this stage, team members, you have to take the responsibility, and you have to make clear about their roles and their responsibilities in the team. You have to make those responsibilities, and you have to clear them as a leader. And this stage can last for some time. This will stay for some time, and as people started to work together, and as they make an effort to get to know their new colleagues, then automatically this stage will cross, and then the next stage will come, that is storming. So in storming, the team moves into the when the team moves into the storming phase, where people start to push against the boundaries established in the forming stage. Means in this is the main stage where people usually, many team leaders, many people from the team, they used to get fail, because they fails, and they will, because they don't know, they don't understand what to do, and then some will say that it will be difficult to do, it is a different work, I cannot do it, and some will, then a lot of demotivation will come in this stage. And also in stopping phase can also happen in other situations. For example, say team members may challenge your authority to the leaders actually for position of their role. They say that I am going to do this role, but you are giving him another role, but he's saying that I will go for this role. Uh, he will not support you at that time. And that then, if you have defined clearly how the team will work, and the people may overwhelm uh, by their challenge, for the position that for the position that the leader or the uh, authority that uh, authority or the leader who have choose his place for any work, or for achieving any goal, then they could be uncomfortable with that, and then, with that approach, they will be get demotivated, and in this stage only many team leaders will leave you. This is the stage. This is we can say that this is the in all the 5 stages. This storming stage is the critical stage mainly. So some may question the what of the team's goal. They will ask you that we are going to achieve this goal. What will be the helpful? What will be the beneficial? That type of questions they will ask. So team member who stick with these tasks at hand may experience stress also, and particularly as they don't have the support of established process, or say strong relationship with each other, because they don't know each other. They are going to know each other, but till now they are not close to each other. That's why they don't know each other, and this way this stage will continue. And after that, what happens? Then the next stage will come, norming. Norming means, as you seen by the word, you can get that norming means it already getting normal. That is what it is saying as norming. Gradually, the team moves into the norming stage,
then this is when people start to resolve their differences. Actually, appreciate colleague strengths. They will come to know that this person, from his team leader, this my colleague is very good in this work, and this colleague is had a good strength in this work. This way, they will know appreciate all the colleague strengths, and they also respect the leader. Also, they used to start respecting their leaders, and they also in this stage. Uh, the team members know each other better, and because they already spend some time, and they will know each other, and they will provide constructive feedback, and people develop a strong commitment to that team goal. Actually, they started committing, and you start to see good progress towards it. And there is often a prolonged say overlap between storming and the norming, because as new tasks come out, the team may latch back into behavior from the storming stage. And after this norming stage, we will go to the performing stage. So that is the fourth stage where we will go. When the team reaches the performing stage, and when hard work leads, say without friction, to the achievement of the team goals, then as a leader you can delegate much of your work, and you can concentrate on developing the team members also. And also it feels easy to be a part of the team at this stage. And also people who join or leave on disrupt performance. Actually, in this stage, we can say that in this stage we are already performing, means we are performing, and we are all ready to achieve the goal. And then comes the last stage, that is adjourning. As the project comes to an end, actually when you already achieve the target, and the team moves into the adjourning stage. And at this point, the team has become very close, and many of the team members will feel a sense of loss, because they very much close to each other, and they think that if the project is end, or if the our target achieved, then we will going to be again, we will be going from each other. That way they will think. For this reason, this stage is also known as the morning stage, because morning stage means all they feel sad that we are going to we are already finished our project, or whatever the achievement, whatever the teamwork we supposed to do, the team the goal of the team was achieved, and we are going to leave behind this. That type of thinkings come. So as a project manager, or as a leader, it is important that you arrange for celebration to recognize the team accomplishment, and you have to recognize them, that this is the things you have done. That's why you are recognized for this, and that they will remember the recognition and appreciation you showered on them on this project. So if you recognize them in this project, then whenever the next any achievement or any goal you want to target with those team members, then automatically they will come to you, and that they will join with you. So this is the five stages that we have to go through when we go for any team building, or for a teamwork. And also, if we see about teamwork characteristics, what are the characteristics needed for a teamwork? That they work effortlessly. We have to work effortlessly, and we also have the trust with each other, because we have to believe each one of us. Then only we can do as a team. And also there should be a good communication between them. So because if we don't communicate each other, then the teamwork will never be successful actually. And also there should be supportive and the motivation. As I told you earlier, the motivation is necessary, because one member is motivated, then he can motivate almost 10 other another members. And also there will be innovative ideas, which I told you before, that because many people are involved in this, so many ideas will be there, and so we can choose any better idea, and then we can innovate some new ideas. And also active participation is needed. So we have to manage, as a leader we have to think that all the members of the team, they participate in any every uh, set of goals what we are going to do, they should participate. And they also I like to say that how can you make a teamwork success? First, you have to know your people. You have to know each one of the each team member of your people, and also you have to choose the right team members. In our business, if somebody is say if you are joining for in your team some prospect, if that prospect is not willing to do any business, he is only wants to be a consumer, then if you force him and bring him
if you make him the ID and you place it in your team, then it will be no helpful, because he is sure that he is not going to work. He is not going to work as a distributor. He is going to do as a consumer only. So you have to choose the right team members also, because if you choose that type of prospects in your team, then your team will never develop, because he will not do his work, because he will never bring any people to you, or he will never go to any process, because he in the first stage only, he in the starting only he told that he wants to only, he will be with you as a consumer only, but you have bring him as a team member. So it's your fault. So you don't do that type of faults. So choose the right team member, and the goal should be the same. All people have the same goal. That one common goal should be there, and they're also developing. That teamwork requires commitment also. You have to commit the team members. So if you committed something, then you should fulfill that. So if you can't fulfill, you don't commit. That is the one thing, because many people, many leaders, what they did, they used to commit, but after when the time comes for the commitment, he gets back. So we should only do the commitment which we can fulfill. So we should uh, so we should give those type of commitment which we think that I can fulfill that type of commitment we should make. And they also so create some problem solving environment, so that anyone, if he is having problem, he can freely come and ask you about the problem, about its solution, so that you can also solve it. And they also uh, you should share all the outcomes to your team members, that if you are getting some recognition, then you can share with them. If you are not getting it, if you fail in something, then you need to share that one also with your team, so that all your team members are aware of everything. And then also last, there is the communication between the team. That is also one of the most important thing, because the communication is the major role which plays in the teamwork. Because when a team doesn't work, means 99 out of 100 times there is a communication break. That is what we always say. That is, effective communication is a vital part of any team. So we should communicate each other according to their what they think. And you should also know that what you are want to communicate them, they are getting it or not. You should communicate, and you should say counsel with them. And you have to while counseling, you will come to know that whether they got your communication or not. So communication is must. You should do it. So let's see, Sokovic sir is available or not. I think okay, just a minute. Okay. Okay, this is the thing what I want to say about today, about this team building and the teamwork. Because in our business, as you know that in direct selling, teamwork is the main thing, because without teamwork we can't do anything. So because here, as we know that we have to build team, and from the team only, when the team will do better, then only we will also get success, we will also get lots of income. So we should focus on team building, because this team building, many we are doing the teamwork. So we are going to build the team. But as I told you before, in the storming stage only, we quit. Normally many leaders quit, but we have to overcome that stage. After overcoming that stage, there are another three stages which are very good, and they're very, I think they will enjoy it. But as you know, in the first stage, in every business there is some uh, people who used to quit in the first stage only, because in the first stage they have to do some lot of hard work. And so in the normally, while starting in the second stage only, many leaders used to quit. So I will suggest all of you that just keep on doing your things, and keep trusting your uplines, and also your leaders, and all your team colleagues. And if you do accordingly, then automatically when you go to the norming stage, then automatically it will be normalized. And after that you will go for the performing stage also, and then you will perform also. This way automatically your yes, this way automatically what happen, your team will develop day to day.
And they also again, this is what I want to tell about this teamwork or team leaders. And I think Chakraborty sir will come within a minute, and he will share you about the. He will continue with the yesterday's topic only. Yesterday he already told that there is only another 1.5 hour, 1 or 1.5 hour time he needed to explain the whole thing about acidity and this one alkaline. And today he is going to say that he told yesterday only. So he is coming. So again, I am requesting you that as you are getting the knowledge of this acidity and the alkaline yesterday also, today also you are going to know about it. So just promote our alkaline bottle, because when you buy that alkaline bottle, I think who already buy, they knew it. But who had not buy, I am want to say that inside that bottle there is two solution is also there. One pH solution. You can show demo to the people also by taking some tap water, or say cold drinks, or say you can say some normal AquaGuard water, and our water also, our alkaline bottle water also. They, this way you can show the demo. After showing the demo, automatically they will go for our product. I think Chakraborty sir is with us, so I like to hand over to him. Just, अभी ठीक है. Thank you so much. okay, Welcome. okay, sir. Actually, I am doing from mobile. Actually, the laptop was hanging. That's why. Okay, thank you so much. Thank you so much. हो गया. Good morning to our all the dear and dynamic leaders. Audience family, welcome. Talk. Thank you. Yeah, to our dear and dynamic leaders. क्या बोलते DD? Diamond Director बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ dear and dynamic. जैसे आप क्या बोलते हैं DD मतलब Diamond Director. तो चलो वो तो अच्छी बात, अच्छा नाम है. आप सब लोग dear and dynamic है. आप सब लोग DD है ना? Dear and dynamic. And thank you. How are you? Yeah, sir. I'm also doing fine. I'm doing great. दिमाग देने वाला. Yeah, I'm doing great. And you all always should be doing great. है ना? That's a greeting. Great greeting होना चाहिए. और हमेशा मैं ऐसे बोलता हूँ, you all are our dear and dynamic leaders. Dear क्योंकि दिल के करीब, dynamic क्योंकि दिमाग से तेज. दिल के करीब और दिमाग से बहुत तेज और काम से तेज. जो दिल से दिमाग से काम करता है ऑटोमेटिक वो तेज हो जाता है और सक्सेसफुल होता है. He will be always be successful. I know this is today English session, so I think many of them are only understanding English. How many of you here only understand English? You don't understand Hindi. आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते? How many of you are here who don't at all understand Hindi? बस मतलब if someone is there who don't understand Hindi at all, only English, just I want to know how many of you are here. कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो both समझते हैं, मतलब हिंदी समझते हैं? मेरा क्वेश्चन था जो only English समझते हैं, आप हिंदी नहीं समझते हैं. हिंदी some words I don't understand. आप समझ जाएंगे मैडम, you will be understanding. You know, you are, I think you are attending करीब 10-15 days classes. मेरे से बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं जो सेशन अटेंड करते करते बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलना आ गया उनको. पहले समझ में भी नहीं आता था, बट नाउ दे कैन स्पीक ऑल्सो very fluently. Yes, I understand both. Okay, fine. Both for both. Vote for both. Correct, sir. Okay. So I think mostly people understand here Hindi. I think 99% people are here. Our audience is here who are understanding Hindi. Teddy ji, if you understand Hindi and you can speak a bit, you can do business all across India. Even if you go Nepal also, Nepal में maximum लोग हिंदी समझते. अगर बहुत fluently भी नहीं बोल पाते तो समझते, and that is good enough. मतलब sometimes some things are expressed very well in certain languages and some things are not expressed well in certain languages. Just मैं आपको एक simple understanding देता हूँ. अगर कोई भी एक हिंदी, but I am Nepali, okay, fine, that's fine. मुझे ऐसे नेपाली समझ में आता है, मैं fluently बोल नहीं सकता, but मुझे पूरा समझ में आता है. थोड़ा बोल देता हूँ, remix करके कुछ हिंदी इंग्लिश ऐड करके अलग अलग चीजें ऐड करके बोल देता हूँ, मतलब काम चलाने वाला, but
समझ में पूरा आता है. So if you know multiple languages, even if you can understand, that's a very big addition. Certain times certain language are very good for something, it may not be very good for the other thing. जैसे अगर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकली पढ़ाया जा रहा है, मेडिकली पढ़ाया जा रहा है, उसको आप हिंदी में, नेपाली में, बंगाली में नहीं पढ़ा सकते, कुछ भी नहीं समझ में आएगा. इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस. वो सिर्फ इंग्लिश में होगा. इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो इंजीनियरिंग के फॉर्मूला, उसके कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला हिंदी में, नेपाली में, बंगाली में, तमिल में, कोई भाषा में समझाया जाए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा. लेकिन उसको जब पब्लिक को समझाया जाए, अगर उसको पूरा इंग्लिश में समझाया जाए, कुछ भी समझ में आएगा पब्लिक को. यू सी द डिफरेंस. कई जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग में ये अगर फंडा आपको पता है तो आपको हमेशा सोने का अंडा मिलेगा. Right? If you know this funda, you will always be gaining sone ka anda. Because you see, there is two types of actual education. One is called education for already skilled people, and another education is for skill development. That is for mainly unskilled people, skill development. ये दोनों को ना प्लीज ध्यान से लीजिए, फिर आप हर एक प्रोस्पेक्ट को जीत सकते हैं, आप हर एक डाउनलाइन को काम करा सकते हैं, आप हर एक मार्केट में जाके काम कर सकते हैं, आप हर एक क्लास ऑफ पीपल के साथ काम कर सकते हैं और उनको काम पे लगा सकते हैं. दिस इज समवेयर एसिडिक और अल्कलाइन के साथ लिंक्ड है. दिस इज समवेयर लाइक लिंक्ड विद एसिडिक एंड अल्कलाइन. सो फॉर एग्जांपल, if this was for example, if you are attending a class or you are a teacher or lecturer of nutrition in a nutrition academy means nutrition college, health or nutrition or dietetics college or medical college, they are purely in English. Very medical terminology has to be used. मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे purely in English medical terminology and definition has to be used. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, why? वहाँ पे क्यों मेरे ऐसा आसान भाषा में नहीं बोल सकते? सोल रीजन एक ही है, बिकॉज वहाँ पे जो ऑलरेडी आए हैं, हो सकते हैं ऑलरेडी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आए हैं. ऑफकोर्स सब लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, ऑलरेडी वो लोग फर्स्ट ईयर खत्म करके सेकेंड ईयर में गए हैं, मतलब दे ऑलरेडी हैव द स्किल. दे ऑलरेडी हैव द स्किल, बस उनके स्किल को एड ऑन किया जा रहा है. और दूसरा, आप पब्लिक में जाइए जहाँ पे एकदम नॉर्मल पब्लिक है, ले मैन, मेडिकल साइंस के लिए ले मैन है, उनको अगर वो चीजें बोला जाए, वो भाषा में बोला जाए जो कॉलेज का भाषा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा. 1% समझ में नहीं आएगा. पब्लिक भाग जाके बोलेगा ये सब हमारे बस का बात नहीं. व्हाई? बिकॉज जो कॉलेज में है ना, who are already in the college, they already have the skill. We are just adding on the skill of this medical industry. And the people who are in the common public, they don't have the skill. We have to make the skill. दोनों में बहुत फर्क है. Adding on the skill and developing the skill में बहुत ज्यादा फर्क है. आपने सुना है ना कभी कभी एक भाषा add on. You know this language, add on. जैसे आपने कोई जगह में खाना ऑर्डर करने के लिए गया तो कुछ add on, उसके ऊपर कुछ और add on. सर आप पेप्सी ऐड कर सकते हैं. आप मैकडोनल्ड्स में जाइए, पिज्जा हट में जाइए, कोई फास्ट फूड चेन में बोलते any add on, you want to add coke, you want to add juice to it, but there should be a core food. ये अल्कलाइन एसिडिटी जो मैं आज समझाने वाला हूँ, इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इससे लिंक है. देयर शुड बी कोर फूड. कोर फूड के ऊपर एड ऑन होता है. कोर फूड नहीं है तो एड ऑन आदमी सिर्फ पेप्सी नहीं पी सकता जाके डिनर टाइम में, लंच टाइम में, बट पेप्सी इज एड ऑन. लाइक कोल्ड ड्रिंक एक एड ऑन या एक जूस का कैन एक एड ऑन हो सकता है. दैट इज नॉट द मेन फूड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हिच कैटेगरी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आई हैव टू एड ऑन एंड व्हिच वन आई हैव टू स्टार्ट ऑन. ये दोनों को प्लीज समझिए. इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल whom to add on and where to start on. This is a very, very important perspective. So we learned about alkaline acidic. I think we already have conducted 2 classes about bloating. Then we came at, I do give small succession in my groups in Hindi. That's good. Yes, very good. Congratulations. Please keep on going ahead in this. You're doing great. So already हमने 2 class किया था bloating के ऊपर, already done. So yesterday I was talking about how the alkaline acidic majority, minority and a ruling opposition, अगर आपको याद है, medium of education, जो आप बोलना चाहे, जैसे आप समझना चाहे, already explain. मैं उसको भी वापस नहीं दोहरा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होगा. next 45 minutes बहुत intense होगा. And if you are understanding, please just reply me yes sir, I'm getting, yes, understand, ताकि मैं समझ पाऊँ कि you're getting it. Because this is a very big topic, I have to compress it in a short. It's a very, very long elaborative topic. हाथ पैर है ना, नाखून, बहुत कुछ है, उसके छोटा जगह मुझे लेके आना है, like in a box. So most of the people ऐसा सोचते हैं कि अगर एसिडिटी बॉडी में ज्यादा हो, बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होने से most of the people will tell
पेट में एसिडिटी हो रहा है, ढकार आ रहा है, पेट जल रहा है, मतलब एसिडिटी है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ये सोचते कि एसिडिक बॉडी में या बॉडी में एसिड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, पेट में जलन, ढकार, खाना खाने का पॉसिबिलिटी नहीं है, गैस होना या लूज मोशन होना, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मोस्ट ऑफ द पीपल विल एक्चुअली थिंक, एक्चुअल डेफिनेशन अगर किसी को आप पूछे कि अगर अब शरीर में एसिडिटी हो जाए, जरा शरीर में, पेट में नहीं, शरीर मतलब बॉडी, पेट मतलब स्टमक, हम बातों को डिफरेंस समझे। अगर किसी कॉमन मैन को पूछे प्रोग्राम के बाद फोन करके, अच्छा एक बात बताओ, अगर शरीर में एसिडिटी ज्यादा हो गया तो क्या फीलिंग होगा, क्या क्या होगा, वो एक ही बात मैक्सिमम बोलेगा, पेट में तो बहुत गड़बड़ होगा एसिडिटी होने से, पेट में जलन होगा, ढकार होगा, गैस होगा, दर्द होगा, पॉटी क्लीन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, एपेटाइट खत्म हो सकता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लग सकता, गले में भी जल सकता है, गले में जल सकता है मतलब एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, रिफ्लक्स जल सकता है, ये सब टाइप का सिम्टम्स आएंगे। आप किसी को भी पूछे, दे आर गोइंग टू आंसर दिस। बट 97 to 98% पीपल इन हिंदुस्तान में 97-98% पीपल एक चीज से अनअवेयर है, एक चीज नहीं, एक चीज से एक और चीज से अनअवेयर है जो उनको पता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है कि एसिडिटी इन द बॉडी इज क्वाइट डिफरेंट देन एसिडिटी इन द स्टमक। दोनों सेम में आते हैं, बट एसिडिटी इन द बॉडी एक बड़ा रेंज है और एसिडिटी इन द स्टमक एक वन टारगेटेड रेंज है। दोनों को प्लीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट, okay, thank you, yeah, yes, sometimes it happens, it's okay. So acidity in the body is a different subject, and acidity in the stomach is a different subject. Acidity is in the stomach means आपके पेट का एसिडिटी, सिंपल भाषा में समझिए, आपके पेट का एसिडिटी एक्चुअली शरीर के एसिडिटी के बुक में आता है। तो ऐसा सोचिए, शरीर का एसिडिटी एक कंप्लीट बुक है और पेट की एसिडिटी उसमें चैप्टर है। तो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, ये मुझे बताइए। This is where people are actually confused, or where most people don't know this matter. कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? शरीर का एसिडिटी एक कंप्लीट बुक है और पेट का एसिडिटी उस बुक में चैप्टर है। Which one you think is a really bigger and severe problem or pandemic thing? इतना टाइम लगता है आप लोग आंसर देने की, जो लगता है वो आंसर दीजिए ना, दिल से दिमाग से आंसर दीजिए। एंड आई रियली रिक्वेस्ट, प्लीज सब लोग अपना कैमरा को काइंडली खोले रखिए। काफी सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। काइंडली माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कैमरा को खोलिए काइंडली। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द प्रोटोकॉल। हम बहुत सारा छूट देते ड्यूरिंग आवर सेशंस, बट प्लीज कैमरा को अगर खोल के रखेंगे तो अच्छा होगा। इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। आप लोग इतना खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, इतना डायनामिक है, हीरो है सब लोग, तो यार क्या मुश्किल है चेहरा दिखाने के लिए, है ना। लीडर है तो चेहरा दिखाना ही तो सबसे बड़ा काम होता है ना, सबसे फर्स्ट इन द बॉडी। ओके, जुरानाली जी, सबने मैक्सिमम लोगों ने वोटेड फॉर द बॉडी। एक्चुअली द आंसर इज द बॉडी। आप सोचिए कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बुक या बुक के अंदर एक चैप्टर। तो ऑफकोर्स एक बुक, क्योंकि आपको जब एग्जाम लिखना है, सपोज आप नेक्स्ट एक महीने तक कोई भी टॉपिक, ज्योग्राफी का, आप नेक्स्ट एक महीने तक ज्योग्राफी, नेक्स्ट एक महीने बाद आपके ज्योग्राफी एग्जाम है, नॉट पोजीशन इन मीटिंग। ओके, इट्स ओके, फाइन, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली ऐसे सोचिए कि आपका 1-2 महीने बाद ज्योग्राफी में एग्जाम है। सो अब ऐसा हो गया, एग्जाम के लिए एक किताब दिया गया, तो अभी एग्जाम में उस किताब से कहीं से भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको आंसर देना होगा तो आप पास करोगे, और ज्यादा अच्छे से और आंसर दोगे तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे, फर्स्ट भी आ सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हो। ज्योग्राफी का बुक दिया इतना बड़ा, 100 पन्ने का, 100 पन्ने में सोचिए 20 चैप्टर है, एक चैप्टर 5-5 पेज का। सो अब अगर ज्योग्राफी का बुक को आप पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ोगे, तो जब एग्जाम में सिर्फ वो चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर ही आप दे पाओगे, बाकी तो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाओगे। 5 चैप्टर भी सिर्फ पढ़ोगे तो बाकी 15 चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाओगे। इसका मतलब बुक हमेशा ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्रॉब्लम भी होता है।
देन द चैप्टर। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्यों होता है बोलोगे सर, क्योंकि आपको एक चैप्टर पढ़ के उसको याद रखने के लिए 1-2 दिन लगेगा, लेकिन पूरा बुक को पढ़ के बार बार पढ़ के याद रखने के लिए हो सकते 1-2-3-4-5-6 महीने भी लग जाए। तो प्रॉब्लम इज बिग एंड द सॉल्यूशन इज आल्सो बिग, बिकॉज प्रॉब्लम, बड़ा वाला प्रॉब्लम को जो तो आपने कर लिया तो आपको मार्क्स भी तो ज्यादा आएगा। आप 1-2 चैप्टर को मास्टरी करके गया पढ़ के पूरा, तो आपको 1-2 चैप्टर का जो 10-20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100 में 10-20 आएगा आपको, बाकी तो 80 आपको नहीं आएगा। बट अगर आपने पूरा चीज को ही पढ़ के गया बुक को, तो आपको शायद 90% मार्क्स, 95% मार्क्स भी आ सकते हैं। सो एक्चुअली दैट मीन्स यू थिंक द बॉडी एसिडिटी हमारे शरीर की एसिडिटी इज लाइक ए बुक, एंड the acidity of the gastrointestinal tract, मतलब digestive system, is one chapter. But the problem what public has, किसी को एसिडिटी बात बोलते हैं, लोग पेट दिखा देते हैं। कोई लंग्स दिखाते हुए सुना आपने किसी को किडनी दिखाते हुए कभी सुना है? किसी को चेहरा दिखाते हुए, आंख दिखाते हुए, ब्रेन दिखाते हुए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल सिस्टम, जॉइंट दिखाते हुए कभी सुना है? पैरों के नीचे फीट को कभी दिखाते हुए सुना है? कभी किसी को आपने बोलते हुए, बात करते हुए सुना है? कॉमन पब्लिक को, मैं नॉन मेडिकल पब्लिक का बात कर रहा हूँ कि ये एसिडिटी और रात को नींद का कोई चैप्टर या कोई टॉपिक किसी ने निकाला है, एसिडिटी और सेक्स में प्रॉब्लम है, पावर नहीं है, ऐसा कुछ चैप्टर निकलते हुए दिखा है, एसिडिटी और खराब सपने आना, नाइटमेयर आना, उसमें कुछ लिंक आया है, ऐसा किसी को बात करते हुए सुना है? मतलब लोगों के पास, आपको क्या लगता है, लोगों के पास, कॉमन पब्लिक के पास ये जानकारी है? कॉमन पब्लिक एसिडिटी पेट दिखा देगा, उसके नीचे ना दिखाएगा, ना उसके ऊपर दिखाएगा, बात तो आप उसी जगह में खत्म। सो अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से मेरे सवाल को सुनिएगा और सोच के आंसर दीजिएगा। अगर सोचिए 100 लोग आपके कांटेक्ट में, 100 लोग हैं, 100 पीपल आपके वेरी क्लोज में, वार्म कांटेक्ट में। अब वो 100 में से 100 को एग्जाम देने जाने, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को ले आता, 100 में से 100 को एग्जाम देने जाना है आफ्टर लेट्स से 2 months टाइम, और 100 में से 100 के लिए वो किताब पढ़ना जरूरी है, बिकॉज भाई एग्जाम में उसी किताब से क्वेश्चंस आने वाला है। तो अगर आपके जितने भी सब 100 लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चैप्टर सब लोग पढ़ के गए, उसमें 20 चैप्टर हैं, 20 में से एक ही चैप्टर सबने एक ही वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के गए, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ के क्या वो लोग ज्योग्राफी एग्जाम में पास होंगे? फर्स्ट आना तो अलग बात है, आपको लगता है ज्योग्राफी को एग्जाम में वो लोग पास होंगे? विल दे पास इन दैट एग्जाम? फर्स्ट आना सेकंड आना छोड़िए, पास होंगे? क्या लगता है आपको? विल दे पास? क्योंकि यहाँ पे पूरा आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। आपको तो पता है मैं सांप का पूंछ पकड़ना पसंद करता हूँ, तो मुझे घुमा के आपको समझाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को घुमा के समझाओगे तो सीधा समझते हैं। हमारे देश में जनता कैसा है ना, उनको टेढ़ा घंटा पसंद है, सीधा नहीं। तो काफी टाइम आप घुमा के जब देंगे ना, तब रियलाइजेशन होता है, ओ हाँ ऐसा है बोल के ऐसा। तो आपने बोला कि वो कैसे भी पास नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल टू पास, सो ही हैज टू स्टडी द होल बुक। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अंडा मिलेगा सर, राइट, वो भी सोने का नहीं है ना, वो प्लास्टिक का अंडा मिलेगा जो चाइना बनाता है आजकल, बना के पूरा सब जगह में, हमारे देशों में भी घुसाता है, खा के आदमी मरने वाला सीन हो जाता है। सोने का नहीं, प्लास्टिक का अंडा, चाइनीज वाला। चाइनीज अंडा सुन के लोग दौड़ते, चाइनीज अंडा, इसमें प्लास्टिक होगा, ये मुर्गी से नहीं निकला है, ये प्लास्टिक से निकला है, राइट। इंडिया भी बनाता है इंडिया भी बनाते हैं, बट वो इंडिया भी चाइना को थोड़ा देख रहा है यार, चाइना साइड प्लास्टिक का अंडा बना के बड़ा जीडीपी बना लिया, इकोनॉमी बढ़ा लिया, तो तो हम भी कुछ जीडीपी बनाने के लिए और कुछ तो नहीं मिला, प्लास्टिक की बनाते हैं, तो क्यों ना जीडीपी को हम लोग, इकोनॉमी को हम लोग हेल्थ के साथ जोड़ के ऊपर बढ़ा भी सकते हैं। कम बैक टू द टॉपिक। अब ऐसा हो गया कि जैसे वो लोग कैसे भी पास नहीं कर सकते, 100% फेल करेंगे, तो मेरा आपसे सवाल है, अगर हमारे पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, आपके 100 कॉन्टैक्ट जो हैं, अगर उनको भी सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही चैप्टर ऑफ एसिडिटी का पता है, जो है गैस्ट्रिक मतलब पेट, बाकी 19 चैप्टर बॉडी का कुछ नहीं पता है, तो क्या वो लोग हेल्थ, अगर हेल्थ एक एग्जाम है, हेल्थ एग्जाम लिखना नहीं है, अगर हेल्थ खुद एक एग्जाम है, तो क्या वो लोग हेल्थ में पास करेंगे या फेल करेंगे? और किस प्रकार का पास करेंगे या किस प्रकार का फेल करेंगे? मेरे सवाल को आप समझ पाए? अगर वो लोग, आपके 100 जो कॉन्टैक्ट है और हेल्थ एक एग्जाम है, अगर वो लोगों को सिर्फ एसिडिटी का और अल्कालाइन एसिडिटी का एक ही चैप्टर पता है पेट का, तो वो लोग इस हेल्थ
बॉडी का जो एग्जाम है, बॉडी का एग्जाम, उसमें किस तरीके से होगा, पास होगा फेल होगा, फेल होगा तो कैसा फेल होगा, किस तरीके का फेल होगा, थोड़ा थोड़ा फेल होगा या पूरी तरह फेल होगा, खराब तरीके से फेल होगा, पास कैसे पास होगा, अमित जी कैसे पॉसिबल है पास होना जी ये तो बताइए पास कैसे हो जाएगा आदमी। फेल होगा और बुरी तरह फेल होगा, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली फेल होगा, मतलब जाके पिट के आएगा, फेल थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा फेल, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि आपका अल्कलाइन एसिडिटी के साथ 20 बॉडी के चैप्टर लिंक्ड हैं और आप सिर्फ एक चैप्टर जानते हो जो है गैस्ट्रिक, लेकिन एग्जाम में 20 चैप्टर हैं, 20 एरिया सोच लो ना बॉडी का, 20 है और आप सिर्फ एक चैप्टर जानते हो, आप खुद अपने आप को सोचो, तो 1/20 कितना होता है, 5%, 20 का 1 कितना होता है, 5%। इसका मतलब आप तो सिर्फ 5% ही प्रिपेयर होते, एग्जाम में ओनली 5% मार्क्स लाओगे, 100 में ओनली 5, 100 में 50 नहीं, 100 में सिर्फ 5। इसको बोलते हैं बुरी तरह फेल करना, लास्ट आना, फर्स्ट नहीं लास्ट आना, बिकॉज आप तो ओनली 5 पढ़ के गए हो, अगर वो 5 को भी प्रॉपरली आंसर किया तो ओनली 5 आएगा, 100 में आएगा 5, एक एक चैप्टर से 5 था, 20 into 5 100 था मार्क्स में, अगर पॉइंट्स में बोले तो, और आपको ओनली एक चैप्टर पता है, तो एक चैप्टर भी मास्टर कर लिया तो यू विल गेट ओनली 5, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 5 मीन्स अ वेरी वेरी बैड फेलियर, दैट मीन्स एक्सट्रीमली बैड हेल्थ, मल्टीपल डिजीज। आज प्रोग्राम के बाद कोई भी किसी को पूछिए, कितने लोगों को ये पता है कि रात को नींद ना आना, इंसोम्निया, एसिडिटी के साथ लिंक्ड है, आप पूछिए, शायद 99% पब्लिक को पता नहीं होगा, नॉन मेडिकल पब्लिक को, मेडिकल वाले को तो पता होगा कि इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रहा है, नॉट गेटिंग स्लीप इजीली, इधर उधर मुड़ना, एसिडिटी लिंक्ड है, माने अल्कलाइन एसिडिटी लिंक है, क्योंकि अल्कलाइन एसिडिटी लिंक विल नाउ गो टू द नर्वस सिस्टम एंड फाइनली नर्वस सिस्टम इज लिंक टू स्लीप। आपने ऑलरेडी, आप जानते हैं, आपने मेरे से बहुत बार सुना है कि हमारा नींद आना नहीं आना, कंसंट्रेशन रखना नहीं रखना, दिन में जोश, रात को नींद में उड़ गया होश, है ना, दिन में जोश, और बोलते ना नींद ऐसे मरा आदमी ऐसे सोया, ऐसा डीप नींद में सोया, कुछ याद ही नहीं, इतना डीप नींद में सोया, दैट मीन्स वो पूरा होश उठ के सोया है, वेरी गुड, ग्रेट फॉर द बॉडी, अगर 4-6 घंटे ऐसे सोता है तो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि अल्कलाइन एसिडिटी के साथ नींद लिंक है। आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने क्लासेस में पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम का अगर प्रॉब्लम है, न्यूरो सिस्टम, नर्व एंडिंग्स का प्रॉब्लम है, तो रात को नींद आने का प्रॉब्लम होगा, इंसोम्निया शुरू हो जाएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम अल्कलाइन एसिडिटी मीडियम के साथ लिंक्ड है, ये कितने लोगों को पता था, ये कितने लोगों को पता है कॉमन पब्लिक में, नहीं पता है, पता नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी alkaline acidity के साथ this medium is linked to actually for the sleep, it's maximum लोगों को पता नहीं है। मैं आपको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था कि अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सडनली, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो लास्ट 10 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप भी उस पर पढ़ते हैं या आपका बच्चा पढ़ता है, भाई पढ़ता है, बहन पढ़ता है, कोई बहुत क्लोज पढ़ता है, और उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में लास्ट 10 ईयर्स से फैंटास्टिक वे से इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, ज्योग्राफी भी इंग्लिश में, मैथमेटिक्स भी इंग्लिश में, फिजिक्स भी इंग्लिश में, केमिस्ट्री भी इंग्लिश में, फिजिकल एजुकेशन भी, फिटनेस एजुकेशन भी इंग्लिश में, एवरीथिंग इज बीन टॉट इन इंग्लिश। Suddenly the medium of education changes into maybe into Nepali or into Hindi or into Assami or into Bengali, into Tamil, in some other language. अगर वो मीडियम चेंज हो गया तो क्या सिर्फ आपका फिजिक्स पढ़ना इफेक्टेड होगा या सब सब्जेक्ट पढ़ना इफेक्टेड होगा? आप मुझे बताइए, अगर मीडियम ऑफ एजुकेशन ही चेंज हो गया तो क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट इफेक्टेड होगा या हर एक सब्जेक्ट जो स्कूल में इंक्लूड है सिलेबस में इफेक्टेड होगा? सभी सब्जेक्ट इफेक्ट होगा, ऑल सब्जेक्ट विल बी अफेक्टेड। तो अगर शरीर में अल्कलाइन मीडियम हेड टू टो, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, अल्कलाइन मीडियम पावर में रहेगा, मेजोरिटी में रहेगा और एसिडिक ऑपोजिशन में रहेगा, ये मीडियम सारे सब्जेक्ट ऑफ द बॉडी को
कवर करता है। और ये मीडियम ही अगर उल्टा हो गया तो आपको नहीं लगता शरीर के सारे सब्जेक्ट को खराबी होगा, शरीर के सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा? आपको नहीं लगता? होगा नहीं होगा? बस मुझे इतना बताइए। आप उस एजुकेशन सिस्टम के साथ ये सोचिए ना, ये भी स्कूल के बच्चे हैं, आपके हार्ट, लिवर, किडनी, न्यूरो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब। दैट मीन्स व्हाट? आप सोचिए क्यों हिंदुस्तान में एंड ऑफ कोर्स नेपाल में भी ऑल्सो, इवन आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, क्यों आज हमारे इस सब कॉन्टिनेंट पे लोग बीमारी से बाहर नहीं आते? द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लोग बीमारी से बाहर नहीं आते बिकॉज लोग बीमारी को उस एंगल से ही देखना चाहते हैं या उस एंगल से ही देखते हैं जिस एंगल से मेडिकल इंडस्ट्री उनको दिखाता है। वन मोर टाइम, लोग हमारे देश में है ना, हमारा जो जनता है, मेडिकल प्रॉब्लम को या बीमारी को, हेल्थ को उसी एंगल से देखते हैं, या तो जिस एंगल से वो देखना चाहता है या जिस एंगल से ऊपर बैठे हुए माफिया, मतलब मेडिकल माफिया, वो जैसे दिखाता है। मतलब हमारा पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है? खुद पढ़ के देखना नहीं चाहता है, खुद परख के समझना नहीं चाहता है, खुद जानना नहीं चाहता है। कोई जानकारी दे दे, वो लेके चुपचाप बैठ जाए, लेकिन उस जानकारी को खोलना नहीं चाहता है। दैट्स वाई एसिडिटी, अल्कलाइन मतलब पेट तक ही सीमित है, बस बात वहां पे खत्म, पैसा हजम। लोगों को यही थिंकिंग है। इसका मतलब जैसे वो लोग एसिडिटी सुनेंगे और उसके साथ लिंक्ड इज ओनली द स्टमक, ओनली द गैस्ट्रिक सिस्टम, तो उसका प्रॉब्लम होगा, तभी टिंग टिंग होगा, या उसके वजह से कुछ वो दवाई लेगा, या शायद उसका ही सिस्टम का कुछ सप्लीमेंट लेगा, बात वहाँ पे खत्म करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो लोग लास्ट 5 साल से या लास्ट 5 महीने से नींद नहीं आ रहे हैं, या 5 हफ्ते से गलत गलत सपने आ रहे हैं रात को। एक तो नींद नहीं आ रहा है, नींद आ रहे तो गलत गलत सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स टाइप के आ रहे हैं, डिस्टर्ब ड्रीम आ रहा है। सुबह उठने के टाइम शराब फराब कुछ भी नहीं पिया, लेकिन सुबह उठने के बाद एक हैंगओवर आदमी को रह रहा है हमेशा, पूरा दिन आदमी खोया खोया है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन शिफ्टेड टू द एसिडिक। जैसे स्कूल का इंग्लिश मीडियम अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरी सब्जेक्ट विल बी अफेक्टेड। हियर अगर एल्कलाइन मीडियम्स गेट शिफ्टेड इनटू एसिडिक मीडियम, एवरी सब्जेक्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड। Nervous system is one subject, hormone system is one subject, digestive system, cardiovascular system, joint, muscle, sexual system, eye, vision, intellectual system, every system will be disturbed. अगर बॉडी में अल्कलाइन मीडियम शिफ्ट होकर एसिडिक हो गया, आदमी पढ़ाई करने बैठेगा, वही आदमी जो आज से 5 हफ्ते पहले या 5 महीने पहले सुपर इंटेलिजेंट था, पढ़ते कैच कर पाता था, आज वो एक पेज को 5 दिन बाद पढ़ने के बाद भी कैच नहीं कर पा रहा है। तो आदमी ये सोचना शुरू करेगा मेरा दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जाके ब्रेनोलिया खाता हूँ भाई, सबसे पहले, है ना, मेमोरी बढ़ाने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने का ब्रेनोलिया खाता हूँ भाई। या तो डॉक्टर के पास जाएगा या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि पढ़ाने वाला तो ब्रेन है, पढ़ाने वाला ब्रेन है, न्यूरो सिस्टम है, लेकिन ब्रेन को, न्यूरो सिस्टम को भी चलाने वाला तो अल्कलाइन मीडियम है। गड़बड़ी तो उसमें है। आप पढ़ रहे हैं ना, देखने वाला आंख और पढ़ने वाला, माने देखने वाला आंख और घुसाने वाला, पढ़ाई पढ़ाने वाला है ब्रेन एंड न्यूरो सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ही आपको पढ़ा रहा है, लेकिन उनको कौन चला रहा है? वो किस मीडियम में चल रहे हैं? अल्कलाइन में। अब वो शिफ्ट होके किस मीडियम में चल रहे हैं? एसिडिक में। क्या वो ठीक से चल पाएंगे? क्या वो लोग ठीक से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। वो लोग ठीक से नहीं चल पाएंगे तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे? आप ठीक से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। ठीक से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना। ठीक से जाग पाएंगे? नहीं जाग पाएंगे। ठीक से याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। It means what? So any problem has actually a very root cause. We have to understand it. So if we understand the general health, देखिए मैंने अभी तक कभी बीमारी का बात नहीं कर रहा हूँ इस alkaline acidic जब मैं बोलता हूँ, just understand what is this, then we will understand very easily that how it causes multiple problems. आज आपको एक चीज तो पता चला, काफी टाइम लोगों को खराब सपना आता है, मैंने सडनली पहले नहीं आता था, कुछ लोगों को बाय चाइल्डहुड आता है, लास्ट 10 ईयर से आता है, दैट इज अनदर, दैट्स अ कंप्लीटली साइकियाट्रिक थिंग, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल थिंग, सम ट्रॉमा रिलेटेड में एक बार बोला था, वो अलग है किस्सा, वो अलग प्रॉब्लम है। बट कुछ लोगों को लेट से लास्ट वो बोल रहे हैं ना, मुझे कभी नहीं होता था लेकिन लास्ट 2-3 हफ्ते से ना एकदम डिस्टर्ब ड्रीम आ रहा है, मतलब कुछ गलत गलत ड्रीम देख रहा हूँ, और वो ड्रीम पूरा दिन याद भी रह रहा है, मतलब ड्रीम इतना गलत गलत है, लेकिन पहले कभी नहीं था। तो आदमी क्या सोचेगा, मेरे ग्रह तो खराब नहीं है, ज्योतिष, कुछ पूजा करा लो भाई, है ना, जाके कहीं पे प्रार्थना कर लो भाई, है ना, कुछ जाके दान चढ़ा दो, मैंने कि मंदिर में जाके थोड़ा टंग टंग कर दो, घंटी बज दो। लेकिन उसको ये नहीं समझ रहा कि प्रॉब्लम उसका बॉडी के अंदर है, वह
घंटी बज रहा है, उसको जाके मंदिर का घंटी ऑफकोर्स बजाना चाहिए, पूजा ऑलवेज चाहिए, ऊपर वाले को ऑलवेज बुलाना चाहिए, लेकिन पहले अपना बॉडी जो घंटी बजा रहा है उसको सुनो, उसके बाद जाके कहीं और जगह घंटी बजाओ। सो अगर आपको कोई बोलता है कि मेरा ना लास्ट 1-2 हफ्ते से ना ऐसा टाइप का नींद का प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को मतलब गलत गलत ड्रीम आ रहा है, या तो मुझे पहले नींद का प्रॉब्लम था नहीं, अभी होने लगा है, और या तो मुझे नींद तो आ जाता है, बहुत लेट से आता है, आने के बाद कुछ बैड ड्रीम्स आते हैं, खराब टाइप के ड्रीम्स आते हैं, मुझे पहले कभी नहीं आते हैं। 1-2 दिन आना हो सकता है, देखिए आपको भी कभी आता है गलत सपने, हमें भी आता है स्ट्रेस की वजह से कभी कभी, लेकिन वो पैटर्न बन गया 10 दिन 15 दिन का। उसको इतना आप गारंटी ले लीजिए 95% चांस है कि उसके बॉडी का अल्कालाइन मीडियम का पावर डाउन हो रहा है और उसके बॉडी का एसिडिक मीडियम का पावर उठ रहा है। मतलब जो जिंदगी भर अल्कालाइन मीडियम माने रूलिंग पार्टी होना चाहिए और एसिडिक मीडियम अपोजिशन पार्टी होना चाहिए, हमारे बॉडी का सरकार है। सोचो आपका बॉडी एक देश है, आपके बॉडी के सरकार के अंदर हमेशा ही रूलिंग पार्टी शुड बी एक्चुअली अल्कालाइन एंड अपोजिशन पार्टी शुड बी एसिडिक, पर कहीं ना कहीं वोट में चेंज हो रहा है या कुछ गड़बड़ होकर ऐसे हो रहा है। अब आपको रात को उल्टा पुल्टा सपना आना शुरू हो जाएगा, बैड ड्रीम्स, सम टाइप ऑफ नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब ड्रीम्स आना शुरू हो जाएगा। अगर वो चीज लास्ट किसी को बहुत टाइम से है, इट कुड बी सम अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, कुछ दुर्घटना की वजह से हुआ है, हम उसको साइक्रेटिक में लेंगे, लेकिन सडनली शुरू हुआ है, इट इज कंफर्म्ड 95% चांस कि अल्कालाइन मीडियम इज शिफ्टिंग इनटू एसिडिक, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बस वो एक घंटी टुंग टुंग बज रहा है, बस आदमी को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको ज्योतिष का घंटी सुनाई देगा, पुजारी का घंटी सुनाई देगा, तांत्रिक का घंटी सुनाई देगा, मौलवी का घंटी सुनाई देगा, प्रीस्ट का घंटी सुनाई देगा, लेकिन उसको अपना शरीर का घंटी नहीं सुनाई देगा। एंड दैट इज व्हाई उसका पॉकेट खाली हो रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में, बिकॉज उसका अपना शरीर का घंटी नहीं सुनाई दे रहा है। दिस इज द बिगेस्ट एंड द हार्श ट्रूथ। मैं बोलता हूँ, आपको पता है मेरा बातें बहुत कड़वे होते हैं एकदम, जो काफी लोग बोलते हैं सर आप तो ऐसा बोलते हैं लोग आदमी परेशान हो जाए, बट मैं क्या करूँ, परेशानी से निकालने के लिए तो परेशान वाले बात करना पड़ेगा। एक कहावत है, जहर को जहर काट सकता है, जहर को जहर काट सकता है। कैंसर के मेडिसिन जो यूज करते हैं ना, उसमें कुछ वेनमस स्नेक का वेनम यूज करते हैं, कुछ जहरीला सांप के जहर को यूज करते हैं, बस ऐसा फिल्टर करके निकालते हैं कि वो जहर को काट पाए, ट्यूमर ग्रोथ को काट पाए, ट्यूमर स्प्रेडिंग को। समटाइम पॉइजन को पॉइजन ही काट सकता है। सो समटाइम्स कड़वा, बॉडी के अंदर कड़वा प्रॉब्लम को कड़वा बातों से ही काट सकते, मीठा बातों से नहीं काट सकते, उल्टा डायबिटीज हो जाएगा। diabetes medicines are right. So sometimes what will happen is that suddenly कुछ ऐसा सिम्टम्स डेवलप करना शुरू करेंगे जो आदमी सोचेगा कि शायद मुझे ना वो ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मुझे कुछ मेरे ग्रह में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड ही विल गो फॉर अनदर रेंज ऑफ सॉल्यूशन, बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। आप बोलोगे सर उसको फिर अल्कालाइन क्यों नहीं समझ में आया, वो अल्कालाइन एसिडिक का प्रॉब्लम ये क्यों नहीं समझा? एक ही कारण है, नहीं समझा, क्योंकि उसको तो सबसे पहले जनरल चीज पता नहीं, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं, तो पैथोलॉजी कहाँ से पता होगा? आज आप में से बहुत लोग को जब मैं इंसोम्निया बोलता हूँ या रात को नींद नहीं आता है वो बोलता हूँ, तो आप पैथोलॉजी है समझ जाते हैं, क्योंकि आपको तो फिजियोलॉजी पता है नींद कैसे आता है, आपने लास्ट 6 महीने से ट्रेनिंग सुन रहे, तो आपको पता हो गया, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाता है पैथोलॉजी क्या है। लेकिन एक कॉमन पब्लिक को लीजिए, अगर उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगा तो उसको भयंकर पैथोलॉजी कहाँ से समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो सोचेगा कि ये दिमाग का प्रॉब्लम है या मेरे ग्रह का प्रॉब्लम है या कुछ दुर्घटना होने वाला है या कुछ खराब चल रहा है। इट इज एक्चुअली द बॉडी इनसाइड गिविंग यू द स्लीप इन आउटसाइड, ड्रीम्स आउटसाइड, बैड ड्रीम्स आउटसाइड, जो आप इनसाइड हो रहा है लेकिन उसका आप आउटसाइड इमेजिन कर रहे हैं। ऑफन बहुत सारे लोग, आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप में से भी कोई किसी को फेस हुआ होगा, कभी भी आंखों का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत लोगों को कभी भी विजन का प्रॉब्लम नहीं था, विजन वाज ऑलवेज गुड, बट सडनली उनके विजन में हेजीनेस आना शुरू हो गया। या तो मैंने हेजीनेस मतलब बात समझ, क्लियर विजन नहीं है, हेजीनेस आना शुरू हो गया। तो हेजीनेस आना शुरू हो गया और वो जो वो किताब पढ़ रहा है तो कुछ माथा दर्द कर रहा है, किताब पढ़ रहा है तो क्लियर नहीं, मतलब अक्षर क्लियर नहीं, एकदम पढ़ाई तो दे रहा है बट कुछ हेजीनेस लग रहा है, दूर का चीज भी हेजीनेस हो रहा है, हमेशा आंख ऐसा होते जा रहा है, क्या बोले तो जो खुजला रहा है, आंख ड्राई होते जा रहा है, नो ड्राई आईज। ड्राई आईज मतलब हमेशा आंखों में ऐसे गंदा गंदा होते जा रहा है, गंदा गंदा यहाँ पे आंखों में गंदा गंदा होते जा रहा है, हमेशा आंख को ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है, ड्राई आईज हो गया, हेजी विजन हो गया सडनली, पहले नहीं था, मैंने उसको आंखों का पहले से प्रॉब्लम नहीं था, लास्ट 1-2 हफ्ते में हुआ है। मैक्सिमम लोग क्या करेगा,
चला जाएगा आंखों के डॉक्टर के पास, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास, जो चश्मा के दुकान में बैठता है। अब वो आंखों के डॉक्टर के पास जाएगा तो कंफर्म उसको एक महंगा चश्मा चिपकाया जाएगा। वो आंखों का डॉक्टर जो बैठा हुआ है चश्मे के दुकान में, वो आपका आंख ठीक करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। वो जो चश्मे का दुकान का मालिक वाला धुंधला दिखना, करेक्ट, बिल्कुल हेजी विजन, धुंधला दिखना, जितना करेक्ट। अब आपको एक चीज समझना है, तो लोग आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे ये सोच के मेरा आंख ठीक करेगा या आंखों का प्रॉब्लम ठीक करेगा, बट शायद आप लोग ये नहीं समझते वो जो आंखों का डॉक्टर के लिए जो महंगा केबिन बना के दिया है वो चश्मा दुकान वाला, वो आपका आंख ठीक करने के लिए, वो आपका आंख को ठीक करने के लिए नहीं बैठा है, वो सबसे पहले अपने पॉकेट ठीक करने के लिए बैठे। वो चीज अगर लोग समझ जाए तो पहले वो सॉल्यूशन अपने में ढूंढेगा। तो आप जैसे लोग जाएगा आंखों के डॉक्टर के पास, तो वो आंखों का डॉक्टर बोलेगा सो मच पावर, कुछ ऐसा मेडिकल वर्ड बोलेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, ऑप्टिमेट्रिक पावर, डायमेट्रिक पावर, एसिमेट्रिक पावर, सेगमेंटल पावर, ऐसा ऐसा चीज बोलेगा ये प्रॉब्लम है, ओ यू हैव दिस। आदमी तो नहीं समझेगा, सर इसका क्या मतलब हुआ सर, लोग डर जाएगा ना, सर इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ बहुत प्रॉब्लम है क्या, दिस इज वेरी डेंजरस, ये और कुछ टाइम चला तो आपका आंखों में एकदम विजन ही लॉस हो जाएगा, ऐसे टाइप के टोन में बोलते हैं ना। तो आदमी ने लगा लिया मोटा चश्मा, राइट, या आई ड्रॉप या कुछ ऐसा चीज, और वो चलता रहा, वो ट्रेंड चलता रहा, तो भी प्रॉब्लम चलता रहा, राइट। आप एक चीज देखोगे, आदमी ने चश्मा तो पहना, 6 महीने बाद फिर से उसको आंखों के डॉक्टर के पास जाना हो रहा है, और पावर बढ़ रहा है, और कुछ ड्रॉप ऐड करना हो रहा है, और ये सिलसिला चालू रहा, क्योंकि उसका जो आंखों का हेजिटेशन सडनली शुरू हुआ था ना, बिल्कुल भी आंखों के साथ लिंक्ड नहीं था। उसका जो आंखों का हेजिटेशन शुरू हुआ ना, आंखों का हेजिटेशन या आंखों का कम देखना, आंखों से की आंखों के वजह से भी लिंक्ड हो सकता है, या बॉडी के अल्कलाइन एसिडिक मीडियम के वजह से भी लिंक्ड हो सकता है। आदमी ये नहीं समझता है, आदमी सिर्फ ये समझता है नॉर्मल पब्लिक कि आंख में कम दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आंखों का प्रॉब्लम है। यस, 70% चांस है आंखों का प्रॉब्लम, बट 30% चांस भी है कि उसका अल्कलाइन इज बीन शिफ्टिंग टू एसिडिक, इट इज गिवन हिम ब्लर विजन, धुंधला दिख रहा है, अक्षर ठीक नहीं दिख रहा है, कुछ टाइम पढ़ने के बाद माथा दर्द हो रहा है, दूर का चीज दिखाई तो दे रहा है बट ऐसे करके देखना हो रहा है, ऐसे करके, मतलब नॉट गेटिंग क्लियर विजन, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम बट सडनली डेवलप्ड, मतलब आप सोचिए 2-3 हफ्ते में सडनली डेवलप, तो इमीडिएट बोलने का आंखों के डॉक्टर के पास गया, बात खत्म, आपका 10,000 का बिल चला, अच्छा खासा चश्मा। इन डॉक्टर्स आपको ऐसे ऐसे मेडिकल वर्ड्स बोलेंगे जो रियली नहीं समझ में आएंगे, रियली नहीं समझ में आएंगे तो आप और डरेंगे, और डरेंगे तो उसका चश्मा और बिकेगा, है ना, और आप बार बार आओगे, क्योंकि आपका तो सोल्यूशन चश्मा नहीं था, बिकॉज आपका प्रॉब्लम आंख नहीं था, चश्मा आंखों का सोल्यूशन है, ऐसा ले लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम ही आंख में नहीं था, तो चश्मा कैसे सोल्यूशन देगा आपको वो वाला प्रॉब्लम। आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आपको मां सोल्यूशन होता था, आई ड्रॉप सोल्यूशन होता था, लेकिन अगर वो बॉडी का मीडियम से रिलेटेड है तो कैसे सोल्यूशन होगा। मतलब बात ऐसे हो गया कि स्कूल में इंग्लिश मीडियम था, and that got transferred into let's say Nepali medium or Hindi medium or Bengali medium or Tamil या Assamese को medium, so the medium of teaching school का पूरा shift होके उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में भी वही ज्योग्राफी का ही सिर्फ क्लास इंग्लिश में पढ़ाया जाए, वो भी हफ्ते में एक दिन, इंग्लिश का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया जाए सिर्फ इंग्लिश में, वो भी हफ्ते में एक दिन, बाकी 6 दिन हिंदी में पढ़ाया जाए, या जो लैंग्वेज चेंज हुआ पढ़ाया जाए, आपको क्या लगता है आप रियली समझ पाओगे कि आपका एग्जाम में आंसर्स आएंगे? पॉसिबल है? आपको लेट से हिंदी मीडियम में पढ़ाई समझ में नहीं आता है, नेपाली मीडियम में पढ़ाई समझ नहीं आता, आप 10 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश मीडियम को कंप्लीटली हिंदी में नेपाली मीडियम में चेंज पूरी तरह कर दिया। लेकिन चलो ज्योग्राफी का एक क्लास हफ्ते में 7 दिन में एक क्लास, 7 क्लासों में एक क्लास हफ्ते में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया से, तो क्या आपका रियली ज्योग्राफी भी पूरा सीखना होगा? आपको लगता है आपको पूरा ज्योग्राफी सीखने में आ जाएगा? नहीं आएगा, फाइनली जाके आप एग्जाम में कैसे भी फेल करोगे, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन द मीडियम, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द सब्जेक्ट। आया समझ में? The problem is in the medium of education, not the subject of the education. Geography is the subject, English is the medium. So, and the problem is in the medium, that is English is converted into Hindi medium. So the problem is not in the geography or physics or chemistry or biology subject. The problem is in the medium of the teaching. So alkaline is the medium आप सोचो of teaching and subjects are your organs and systems. ऐसा सोच लो। तो अक्सर क्या होता है,
अल्कलाइन मीडियम इज गेटिंग डिस्टर्ब, सबसे बड़ा चीज जो पीपल विल फेस इज सडन सिम्टम्स। सडन सिम्टम्स मतलब कोई चीज जो पहले नहीं तो सडनली डेवलप होना शुरू हो गया। आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम मे बी वन ऑफ द वेरी क्लियरेस्ट एग्जांपल। सुसु करना, आप जब मूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं, गोइंग टू पी, सुसु करने जा रहे हैं, तो आपको पहले कभी नहीं होता था ऐसा, अचानक से ऐसा हो गया कि आप जब सुसु करने जा रहे हैं, सुसु कर रहे हैं, सुसु हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना सुसु पास करने के टाइम पेन सा फील हो रहा है, जलन नहीं। जलन और पेन में अलग अलग बात। पेन मतलब आपको लग रहा है कि मतलब जब सुसु कर रहा हो तो थोड़ा मतलब दर्द सा महसूस हो रहा है, और ऐसा पुशिंग करना पड़ रहा है, लग रहा है कि पुशिंग करना पड़ेगा सुसु को निकालने के लिए, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जनरली अगर आपको जोर से मुंह आया तो आपको एफर्ट नहीं लगाना, बस खड़ा हो जाना है, वो निकलते जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको ना एफर्ट लगाना पड़ा, आपको फील हो रहा है कि प्रेशर डाल के उस सुसु को निकालना पड़ रहा है। अगर किसी को ऐसा फीलिंग सडनली होना शुरू किया 1-2 हफ्ते में, और एक ट्रेंड 1-2 हफ्ते चलता रहा और चल रहा है, 100% उसका अल्कलाइन मीडियम में डिफेक्ट हो रहा है, अल्कलाइन मीडियम का मेजोरिटी कम हो रहा है, अल्कलाइन मीडियम का पावर डाउन हो रहा है, एसिडिक का पावर अप हो रहा है। इट इज नॉट डायरेक्टली किडनी प्रॉब्लम। लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले लोग अगर ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, लोग जाएंगे अपने कोई डॉक्टर के पास, किडनी डॉक्टर्स के पास या जनरल डॉक्टर के पास। जनरल डॉक्टर बोलेगा ये तो किडनी तो खराब जगह में जा रहा है, जाओ किडनी डॉक्टर के पास। किडनी डॉक्टर बोलेगा आपका यूरिनरी इन्फेक्शन है, स्टोन जमा हुआ है, किडनी का हालत बहुत बुरा है, दिन गिने चुने हैं, ये सब बोलना शुरू करके अब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। दवाई भी दिया जाएगा, इंजेक्शन भी दिया जाएगा, कुछ टाइम एडमिट भी किया जाएगा, फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाएगा। बिल्कुल विशाल जी का एकदम बात सही है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, बट वो पेड मेंबरशिप। लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है ना, एक टाइम पैसा दिया पूरा लाइफ टाइम मेंबरशिप रहा, लेकिन ये रिकरिंग पेमेंट मेंबरशिप चालू हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ चालू हो गया। आदमी ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, फिर 3-4 हफ्ते बाद छोड़ो या 3-4 महीने बाद छोड़ो, फिर गया। बिकॉज अगर सडनली अल्कलाइन मीडियम ऐसे शिफ्ट होकर एसिडिक मीडियम डोमिनेंस में आ गया ना, ये प्रॉब्लम होना है। मैं आपको जो सिम्टम बोल रहा हूँ ना, जलेगा आपका सुसु के टाइम नहीं जलेगा, मे बी आपका सुसु येलो भी नहीं, व्हाइट निकल रहा है, मतलब येलो मतलब पेन होगा, डू द सेम आप, मतलब नॉर्मल सुसु पानी जैसा ही निकल रहा है, लेकिन आपको ना एफर्ट डालना पड़ रहा है, मैंने आपसे आपको लग रहा है कि चापना पड़ रहा है फाइनल उसको निकलने के लिए। काफी टाइम लोग ऐसा, शायद आपने भी कभी फील किया होगा या भी फील करते हैं कि मतलब यू आर हैविंग टू पुट अ प्रेशर, यार निकल नहीं रहा है इजीली, मतलब निकल रहा है बट लगता है अभी भी जमा हुआ है, अभी मुझे पुश करके और निकालना है, मतलब ऑटोमेटिक नहीं निकल रहा है, आ चुका है टिपिंग पॉइंट पे बट निकल नहीं रहा है। पुश करना वो एबनॉर्मल है, पुश करना वो पैथोलॉजी है, नॉर्मली निकलना फिजियोलॉजी है। आगे नॉर्मली निकलना फिजियोलॉजी है और अभी आप पैथोलॉजी फेस कर रहे हैं, कारण ढूंढना चाहिए। हमारे देश में जनता कारण ढूंढना खुद पसंद नहीं करता है, दूसरे ने जो कारण ढूंढ के दिया है उसमें चलना पसंद करता है। दैट इज वाई इन आवर कंट्री वी लैक एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब दूसरे का झंडा ना उठा के, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप खुद का झंडा बना के चलना, और अगर आप बोल रहे हो कि दूसरे का सुनना मतलब नॉन एंटरप्रेन्योर मतलब दूसरे का झंडा उठा के चलना, मतलब दूसरे ने जो बुझा दिया, दूसरे ने स्पून फेड करके दे दिया आपको ना, ये दवाई चाहिए, ये दवाई लीजिए और 5 दिन एडमिट होइए, ठीक हो जाओगे। तो आदमी ओके, रेडीमेड सॉल्यूशन था, टेक इट, पे इट एंड टेक इट, मेरा काम हो जाएगा ना। आदमी ये समझने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि उसका प्रॉब्लम पहले क्यों हुआ यार, अरे उसको तो तुम समझो, तब ना तुम्हें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। जो सॉल्यूशन दिखाए जा रहे हैं वो चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हें क्या सॉल्यूशन चाहिए, और जो अभी दिखाए जा रहा है, तुम्हें बेचा जा रहा है, तुम्हें वो खरीदना है, तुम्हें वो लेना है, नहीं लेना है। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे लोगों का दिमाग में है भाई दूसरे का झंडा उठा के चलने में मजा आता है, क्योंकि झंडा बनाने के लिए डिजाइनिंग करना पड़ता है, झंडा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो दूसरे ने झंडा दिया उसको लेके चलो यार, है ना, अपना झंडा बनाओ क्यों। दिस इज वेयर हमारा मैंने बीमारियों का अंडा बन जाते हैं। जे तो हम लोग अपना हेल्थ झंडा नहीं बनाना चाहते तो हम बीमारियों का अंडा बन जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन आवर कंट्रीज। आप बोलते हैं ना मैं सर बड़ा बिजनेस कैसे करूँ, ऑडियंस में बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट करूँ। बड़ा नेटवर्क तो आप क्रिएट कर सकते हैं जब सबसे बड़ा आप बड़ा थॉट रखोगे, आप बड़ा थॉट को बड़े जगह में पहुंचाओगे, ज्यादा लोगों में पहुंचाओगे और ज्यादा लोगों को बड़े थॉट वाला बनाओगे आपके जैसा। मतलब अब सब आपके साथ यही रास्ते में चल रहे हैं, यू विल बिकम सक्सेसफुल। आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद कोई हरा नहीं सकता, टांग भी कोई नहीं खींच सकता। सो सर्टेन वेरी इजी थिंग्स
certain very easy things can actually give a very big platform. आपको और एक पेट का एग्जांपल देता हूँ एसिडिटी के साथ. एग्जांपल तो बहुत सारा है. अभी मुझे आप पूछ सकते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट, इसमें में डाइवर्ट हो जाएंगे. प्लस आप ये बोलेंगे सर क्या क्या खाने से एसिडिक एल्कलाइन होते हैं, उसके लिए मैं टेलीग्राम पोस्ट में डाल दूंगा. पोस्ट को देखते रहिए, शाम को मिलेगा आपको. एसिडिटी क्या टाइप के फूड्स एसिडिटी करते हैं, क्या टाइप के फूड्स एल्कलाइन करते हैं, आई विल पुट दैट विल बी एल्कलाइन सॉल्यूशन प्लीज सर, दैट विल बी पुट इन द टेलीग्राम चैनल. आप अगर बोलेंगे ऑडियंस प्रोडक्ट क्या खाना है, मैं लास्ट में खत्म करने के टाइम बोल दूंगा क्या ऑडियंस प्रोडक्ट विल हेल्प. सो बट प्रॉब्लम्स का पहले अंडरस्टैंडिंग समझिए. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. यस, आप कोई अगर मेरे चैनल में नहीं, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनी टाइम 24/7 बी एक्सेस टू ऑल द मटेरियल जो मैंने डाल के रखा है. एंड इवन दिस आर ऑल एकदम पेटेंटेड मटेरियल. आपको मटेरियल कहीं पे भी नहीं मिलेगा बिकॉज उसको मैं खुद बनाता हूँ. सब्जेक्ट्स तो मेडिकल एंड ग्लोबल है बट थॉट इज माइन, स्क्रिप्ट इज माइन, सो यू कैन रीड इट एनी टाइम. सो व्हाट हैपेंड इज, पेट का एक प्रॉब्लम बोलता हूँ. आदमी स्टूल करता है, ऑफकोर्स स्टूल नहीं पास होगा, उसको पॉटी नहीं आएगा तो और वो तो मर जाएगा. स्टूल पास कर रहा है अक्सर है, तो अक्सर बहुत लोग ऐसा होता है, स्टूल किया, बैठा, स्टूल पास किया, उसके बाद उसको ये फीलिंग होता है कि अभी भी फिर और होना है. ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है या क्या आप फेस कर रहे हैं अभी भी? कि आपका पॉटी हो गया, क्लियर हुआ, लेकिन आप 10 मिनट बैठे भी, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ टाइम बाद ऐसा फीलिंग हो रहा है कि अभी और भी होना है, मतलब अभी भी बाकी है, क्लियर नहीं हुआ. Do you feel like this? Anyone? आप में से कोई किसी ने सुना है, या तो आप फील करते हैं या तो आपने किसी से ये सुना है, आपके घर वाले से, बाहर वाले से, दोस्त से, किसी से, या मतलब कि मैंने कि क्लियर हो रहा है, हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब और भी लगता है अभी अभी और जाना चाहिए और एक बार, मैंने साफ नहीं हुआ. दिस इज प्योरली अल्कालाइन मीडियम का प्रॉब्लम, एसिडिक का डोमिनेंस. अल्कालाइन गिरना, एसिड उठना, माने अल्कालाइन का शेयर गिरना, एसिडिक का शेयर उठना, उस टाइम आपके बॉडी में ये हो रहा है. लोग क्या करेंगे, जाएंगे फिर से दवाई खाने के पास, जाएंगे डॉक्टर्स के पास, जाएंगे हॉस्पिटल्स के बाद, ये टेस्ट वो टेस्ट, एंडोस्कोपी है ना, एस्कोपी वो स्कोपी बेडोस्कोपी करके बहुत सारा बिल होगा, उसके बहुत सारा दवाई होगा, दवाई देने के बाद क्लियर कुछ टाइम के लिए होगा, फिर से शुरू होगा. Because the problem why some people are facing like this, I think many people is many people suffering this disease. Correct Vijay ji? A lot of people. मैं इसका कोई मेडिकल नाम और है, बट मैं आपको एक मेडिकल नेम बोलता हूँ, मतलब वो मेरा बनाया हुआ नेम है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ. इसको बोलते हैं प्लेसिबो बाउल सिंड्रोम. ये मेरा बनाया हुआ है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा. प्लेसिबो बाउल एम्प्टिंग सिंड्रोम. बाउल मतलब पेट में जो बचा कुछ है, एम्प्टिंग मतलब खाली करना. प्लेसिबो मतलब जब रियली आपको निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपका फिजियोलॉजिकली आपको निकालने का जरूरत नहीं है, बट आपका साइकोलॉजी बोल रहा है और भी निकालना है. दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो बाउल एम्प्टिंग सिंड्रोम. मैं बोल रहा हूँ ये मेडिकली कोई बुक में नहीं मिलेगा. आई मेड दिस नेम फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. प्लेसिबो मतलब है नहीं बट लग रहा है. मैं ऐसा बोल रहा, प्लेसिबो मतलब है नहीं बट लग रहा है. जैसे मैंने आपको एक दवाई दिया, बट वो अब मैंने दवाई दिया, बुखार हुआ है सर, आप बोल रहे हो सर मुझे ना बहुत बुखार लग रहा है, मुझे बहुत बुखार लग रहा है सर, तो मैंने आपको एक गोली दिया, आपने उसको पैरासीटामोल सोच के खाया कि डॉक्टर सर ने दिया है मतलब बढ़िया गोली होगा बुखार ठीक करने के लिए, बट असली में वो कुछ था ही नहीं. वो बस मे भी ग्लूकोज का या नॉर्मली कुछ चीज का एक गोली था जो पैरासीटामोल था नहीं. फिर भी आप खाने के बाद आपका बुखार ठीक हो गया, आप खाने के बाद भी आपका बुखार ठीक हो गया. इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो. है नहीं बट आपको यकीन लग रहा है ऐसा है, आपको लग रहा है तथागत सर ने दिया मतलब वो मैजिकली काम करेगा, मिरेकल काम करेगा. आपने खा लिया, खाने के बाद बुखार ठीक हो गया 6 घंटे बाद, या रात सोया ठीक, सुबह ठीक, बट इट वाज नॉट एनी मेडिसिन. आई जस्ट गेव यू समथिंग एल्स, मतलब कुछ ऐसे ही जिसका कोई वैल्यू नहीं है हेल्थ के लिए, और खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं, जस्ट ऐसे दे न्यूट्रल चीज, पर आप ठीक हो गया. दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट. नाउ ये जो प्लेसिबो बाउल एम्प्टिंग सिंड्रोम बोला, बाउल मतलब पेट में बचा कुछ चीज, एम्प्टिंग मतलब खाली करना, मतलब पॉटी जाना, सिंड्रोम, ये प्लेसिबो मतलब सोचिए कि है नहीं, मतलब जो भी अब है आपके इंटेस्टाइन में जमा हुआ या पूरा सिस्टम में जमा हुआ, इंटेस्टाइन सिस्टम में, वो खाली होना उसका जरूरत नहीं है. इट शुड नॉट बी आउट. वो आउट होने का जरूरत नहीं है. फिजियोलॉजिकल आउट होने का जरूरत नहीं, बट साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है मुझे उसको आउट करना है. तो दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आप अभी इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग आपका,
मैंने फिर बोला कि फिजियोलॉजिकली आउट होने का जरूरत नहीं है, आपको उसको आउट करने की जरूरत नहीं, बट आपका साइकोलॉजी, आपका दिमाग कांस्टेंट बोल रहा है भाई मुझे और एक बार जाना है, क्लियर नहीं हुआ, आई एम नॉट क्लियर, मतलब पेट क्लियर नहीं हुआ भाई, मुझे और जाना है और एक बार जाना है, कहाँ जाऊँ, चलो और एक बार जाता हूँ बोल के ऐसा फीलिंग हो रहा है, और एक बार जाके कमोड में बैठू। अब उठ रहा है, इसके वजह से ही मैं आपको बता दिया। लेकिन आपको क्या लगता है बॉडी का कौन से सिस्टम, कौन से वाला बॉडी का सिस्टम का प्रॉब्लम है ये? उन अल्कलाइन एसिडिक का प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा कौन सा बॉडी का सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है जिसके वजह से फिजियोलॉजी को जरूरत नहीं निकालने का, बट आपका साइकोलॉजी कांस्टेंट बोल रहे हैं निकालो। बॉडी का कौन सा सिस्टम इफेक्ट हुआ होगा इससे, जिसके वजह से आपको ये साइड इफेक्ट आ रहा है? चलिए आपके लिए इंटेलेक्चुअल टेस्ट है, जो भी आपको लगता है लिखिए, लेकिन मुझे फास्ट फास्ट आंसर चाहिए। ओके, आई गॉट वन आंसर। धूप शेरिंग लेपचा आरडीजीएस रॉयल्टी। ओके, ब्रेन एंड नर्व्स, जो आप लोगों का आंसर बहुत लोगों ने लिखा है, इट्स द ब्रेन एंड नर्व्स, करेक्ट। विनोद बासु जी, आंसर इज करेक्ट, इट्स द ब्रेन एंड नर्व्स। मैंने हिंट ऑलरेडी दे दिया था कि फिजियोलॉजिकली नॉट रिक्वायर्ड, साइकोलॉजी इज डोमिनेटिंग, मस्ट रिक्वायर्ड। तो आप फाइनल तो साइकोलॉजी का बात सुनोगे, क्योंकि ब्रेन ही आपको डिक्टेट कर रहा है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल पास कर रहा है, निकालो निकालो। इंटेस्टाइन बोल रहे जरूरत नहीं, वो मेरा हिस्सा है, रहने दो उसको, उसको रहने दो, मेरा पार्ट है, मेरा हिस्सा है, नहीं उसको निकालो। सर जी अभी जरूरत नहीं हो, तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को सर जी बोलेगा, सर जी मेरा बॉस नहीं, जरूरत है, अब मेरा बात तो सुन लो, नहीं हमने बोला निकालो। और ये जो गलत बुलवा रहा है बॉस को, एल्कालाइन शिफ्टिंग इनटू एसिडिक, आया समझ में? उस आदमी को अगर एल्कलाइनिटी नेक्स्ट एक हफ्ते में हम क्रिएट करा सकते हैं, 2 हफ्ता 3 हफ्ते में फुल्ली उसका बॉडी एसिडिटी रिडक्शन करके एल्कलाइन को डोमिनेशन में लेके आ सकते हैं, उसके प्रॉब्लम चला जाएगा। बिकॉज सब सोचेंगे पेट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसके नर्वस सिस्टम में है, उसका पेट में नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसका नर्वस सिस्टम में है। और नर्वस सिस्टम क्यों है प्रॉब्लम है? बिकॉज उसका मीडियम सिस्टम में प्रॉब्लम है, मीन्स एल्कलाइन सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सोचिए कहाँ का चीज कहाँ पे पहुंचता है। बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आई डू माई बेस्ट आपको सिंपल तरीके से ले आने के लिए, मैं उसमें अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ, पता नहीं कितना कर पाते हैं, बट याद कीजिएगा बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोग उसको सिंपली समझ रहे हैं। अक्सर लोग बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बोल के समझना नहीं चाहते और हेल्थ इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हैं, आप सेमिनार के बाद आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको व्हाट्सएप में एक पोस्ट अपने शब्दों का बनाइए, बना के पोस्ट डाल दीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जितने भी लोग हैं उनको डाल दीजिए और देखिए कितने लोग रिएक्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली रिएक्ट कि हाँ मुझे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ हाँ मुझे ऐसा होता है, मैं तो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ। सडन रिएक्शन आएगा, जैसे ही सडन रिएक्शन आएगा, आपका एक्शन का बारी है। आपका एक्शन क्या है? एडुकेशन, जो सीखा आज सिखा दीजिए। अट्रैक्ट, आपके सब कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट। क्या कुछ सॉल्यूशन है क्या यार? इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या सर? कुछ मैडम जी कोई सॉल्यूशन है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का ठीक हो जाता है, उससे आपका प्रोडक्ट बिक गया। आपको प्रोडक्ट बेचने का जरूरत ही नहीं हुआ, वो तो खरीदने के लिए आ गए यार। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोल के बेचने जाएंगे वो नहीं बिकेगा, लेकिन अगर लोग प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे और समझेंगे तो बिकेगा। अक्सर लोग, आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑडियंस में बहुत सारे लोग काम करने के बाद भी फेल हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सेल्स नहीं हो पा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं उठ पा रहा है, टीम नहीं बढ़ रहा है, डाउनलाइन ज्वाइनिंग नहीं उठा पा रहे, आप मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आपके कॉन्टैक्ट्स आपको मान नहीं रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम दोस्तों? व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि अगर आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। ऐसा हजारों सवाल खड़ा कर देंगे कि आप जवाब नहीं दे पाओगे। दाम नहीं, इसका पैकेजिंग थोड़ा ऐसा, दाम तो बहुत ज्यादा, अच्छा मैं थोड़ा डॉक्टर से पूछ के बताता हूँ, नहीं नहीं इसको मैं थोड़ा समझता हूँ, और मतलब बिकॉज दे डोंट वांट टू बाय द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू एक्सक्यूज। तो आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे और नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन, लोग अगर हमारे प्रोडक्ट को एज सॉल्यूशन की तरफ से हाँ करके देखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ से उसको माइंड में लेंगे, पॉकेट से हर कोई खर्चा करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा भी, खाएगा भी, और धीरे धीरे लोगों को खिलाएगा भी। सो आपका प्रोडक्ट, ऑडियंस प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है, सोचिए मत सोचिए ऑडियंस का है, आपका है।
आपका प्रोडक्ट को, अगर इस प्रोडक्ट से आपको बहुत बड़ा ज्वाइनिंग्स और बहुत बड़ा बिजनेस उठाना है, ये प्रोडक्ट शुड बी अ सॉल्यूशन, इट शुड नॉट बी ओनली सप्लीमेंट. If it's only a supplement, nobody will buy it. But if it's a solution, either to prevent a problem or to cure a problem, people are going to buy it. And people are going to use it. People are going to also refer it. आपका बिजनेस क्या है? People should buy your product, use your product, feel your product, share your product. ये तो है ना बिजनेस. इतना तो सिंपल है. तो people will buy the product. First step, buy the product. They will buy the product when they will, आप सोचते when they will learn about the product, when they will see the product, when I will tell them about the product. नहीं. When they will think this is a solution. Solution either to prevent a problem or to come out of a problem. या तो प्रॉब्लम से दूर रहे. एक खतरनाक प्रॉब्लम जो एकदम पास आ चुका है, मैंने लोगों को ये फीलिंग होना चाहिए ये प्रॉब्लम है मेरा बायां हाथ और ये इंसान है वो यहाँ तक आ चुका है, मैंने अब नहीं हुआ तो अजय हिट करेगा प्रॉब्लम में, इस जगह में प्रोडक्ट खरीदेगा. या तो ये प्रॉब्लम है और इंसान इस पर आ चुका है, प्रॉब्लम की इस पर आ चुका है, अब उसको वापस जाना है, तभी भी खरीदेगा. आर यू एबल टू गेट मी? क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग ना पीपीटी दिखाते, मैं पीपीटी नहीं दिखा तो आप मेरा हाथ से समझिए. ये हाथ है बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम, और कोई इंसान यहाँ तक आ चुका है, इंसान ही यहाँ तक आ चुका है, उसको अगर लग गया ना, उसको समझ में आ गया ना, दिमाग के अंदर घुस गया कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और अब ज्यादा नहीं 2-3 महीने में या 2-3 साल में यहाँ पर टच करने वाला हूँ, है ना? ऐसे आगे ताली पीछे गाली, डोंट वांट से, करेक्ट, आके यहाँ पे टच करने वाला हूँ. इस टाइम को अगर उसको ऑडियंस का सॉल्यूशन यहाँ पे टच ना हो जाए, वो तरीके से ऑडियंस का प्रोडक्ट उसको दिखा, ऐसा सॉल्यूशन दिखा, समझ में आए, वो खरीदेगा, खाएगा, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम से और दूर भी जाएगा. और जब वो दूर जाने लगेगा हमारा रिजल्ट की वजह से प्रोडक्ट का, तब वो हजारों लोगों को यही थ्योरी स्प्रेड करेगा, भाई तुम सब लोग यहाँ पे खड़े हो, खा ले अभी, वरना यहाँ इस पार चला जाएगा. और जो इस पार गया है उसको ये समझ में आना चाहिए, ये आपका ड्यूटी है, वो इस पार बैठा हुआ है, ये सॉल्यूशन उसको इस पार से इस पार ला सकता है. और जैसे इस पार से इस पार आया और ये बॉर्डर से और दूर जाते रहा अच्छाई की तरफ, ऑटोमेटिकली वो इसका प्रचार करना शुरू करेगा. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली योर बिजनेस. आपके टीम में कई सौ टेस्टिमोनी है, लेकिन वो टेस्टिमोनी क्यों लीडर नहीं बने? सवाल आता है ना काफी टाइम आपको, मेरे टीम में इतना टेस्टिमोनी है लेकिन यार ये लोग का वजह से बिजनेस नहीं उठा, ये लोग कोशिश भी किया लेकिन किसी को ला नहीं पाया. क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि वो जाके प्रोडक्ट बेचने का तो कोशिश कर रहे हैं, वो जाके बोल रहा है मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया ये खाने से, तुम भी खाओ. वो आदमी को जिसको वो बोल रहा है ना, वो जिन लोगों को वो बोल रहा है, आपका टेस्टिमोनी जिन लोगों को बोल रहा है, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पे खड़े हैं. जिस दिन उनके लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे खड़े, तब वो प्रोडक्ट नहीं होगा, ये सॉल्यूशन होगा, और इस बार चलेगा तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन होगा. दिस इज व्हाट इज योर बिजनेस. याद कीजिएगा, बीमारी को समझने के लिए हाथ नहीं पकड़ते दोस्तों, नारी पकड़ते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीमारी को समझने के लिए हाथ नहीं पकड़ते, नारी पकड़ते हैं. अगर आपके नेटवर्क में बीमारी है मतलब आपका बिजनेस नहीं उठ रहा है. आपका बिजनेस नहीं उठ रहा है मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपका टीम भी मेहनत कर रहा है और आपका बिजनेस नहीं उठ रहा है मतलब बी रेस्ट एश्योर आपके वहां पे बीमारी है. बीमारी क्या है वो समझने के लिए हाथ नहीं पकड़ना है, गहराई में जाकर नारी पकड़ना है. समझना है कि मेरे लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरा टीम हार्डवर्क कर रहा है, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, सब लोग ऑनेस्टली एक जान दे के काम करे, जान दे के काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जान क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग, मेरा पूरा टीम जान दे के काम कर रहा है, लेकिन मेरे बिजनेस में जान और शान क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज समथिंग समवेयर इज रॉन्ग. यू आर नॉट रॉन्ग, योर पीपल इज नॉट रॉन्ग, योर प्रोडक्ट इज नॉट रॉन्ग, योर प्लान इज नॉट रॉन्ग, योर मार्केट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, और ऑल्सो द पीपल जिनके पास आप जा रहे हो, द पीपल यू आर अप्रोचिंग आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग. तो रॉन्ग कहाँ पे है? रॉन्ग है तरीका में, तरीका में रॉन्ग है ना. मुर्गी खराब था, मुर्गी भी अब बढ़िया था, जो आप काट के बाजार से लेके आए, जो तेल में आपने मुर्गी को कड़ी बनाना शुरू किया, तेल भी, कुकिंग ऑयल भी ठीक था, मुर्गी भी ठीक था, मसाला भी ठीक था, प्याज भी ठीक था, आलू भी ठीक था, अदरक भी ठीक था, लहसुन भी ठीक था. आपका पकाने का तरीका ठीक नहीं था, वो खाने लायक नहीं होगा कड़ी. आया समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? वो खाने लायक नहीं होगा, वो फ्लॉप चिकन करी हो जाएगा. कोई खा के ठीक है अच्छा है बोलेगा, लेकिन खाएगा नहीं या वो बिकेगा नहीं. बिकॉज आपको ये समझना है प्रॉब्लम मुर्गी में था. नहीं यार, मुर्गी में तो प्रॉब्लम नहीं था, तो फ्रेश था, रियली अच्छा स्मेल आ रहा था, फ्रेश था. मसाले भी एकदम बहुत बढ़िया, बड़ा ब्रांड का मसाला है, तेल बढ़िया है, प्याज भी महंगा लेके आया मैं यार,
इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी डाला, मैंने आलू भी डाला, मैंने गरम मसाला भी डाला, फिर भी यार ये अदरक भी डाला, लहसुन भी डाला, टेस्ट क्यों नहीं? आपको तरीका में कई गलती है, आपके मिक्सचर करने में कई गलती है, आपके कुकिंग टेक्निक में कई गलती है, आपका कुकिंग टाइमिंग में कई गलती है। दैट्स व्हाई योर कुक फूड बिकेम फ्लॉप। मतलब अगर आप सब कुछ जान दे के कर रहे हैं तो बिजनेस में जान और शान क्यों नहीं आ रहे? आप करें, आपके टीम करे, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? बिकॉज समवेयर यू आर मिसिंग समथिंग, बिकॉज यू आर होल्डिंग हैंड, यू आर नॉट होल्डिंग द नारी। दैट्स व्हाई आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम को पहले समझो ना भाई, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक दिमाग से निकलेगा। और सॉल्यूशन देने के लिए होंगे लोग, पहले प्रॉब्लम को तो समझो। लोग काफी टाइम सोचते ट्रेनिंग मतलब वहां पे सॉल्यूशन सिखाया जाएगा, लोग सोचते हैं ट्रेनिंग मतलब वहां पे प्रोडक्ट सिखाया जाएगा या प्लान सिखाया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग में क्या हो, क्या पीपी सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट प्लान मतलब सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। यहाँ पे तो लोग गलती करते हैं। और 5 साल ऑडियंस में घिसट चुके हैं, जूते का सोल भी निकल चुका है, लेकिन पॉकेट में 5,000 भी बोलो तो नहीं निकल सकता है। व्हाई? Because they are always seen the product as a soul. They only want to sell the product as a product and a plan as a plan. They want to sell audience as a audience. They didn't want to market audience as a life-changing solution. क्या बोलते ऑडियंस से जिंदगी चेंज होगा, ऑडियंस से लोगों का जिंदगी चेंज होगा। कोई जिंदगी चेंज करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है मार्केट से आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? कभी आपने सोचा? पहले मार्केट को तो ये दिखाइए कि जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके का प्रॉब्लम, उसको समझाइए, आदमी को रियलाइज कराइए, फील कराइए उस प्रॉब्लम में। दोस्तों, लोगों को फील कराइए उस प्रॉब्लम में। द टाइम पीपल विल फील देमसेल्व्स दे आर इन दिस प्रॉब्लम, दैट्स द टाइम जो सॉल्यूशन आप दिखा रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन को रियली ठीक से देखेंगे और फिर समझने के लिए आएंगे। समझने के बाद वो जरूर करेंगे, और तब जब करेंगे वो आपका सुपरस्टार बनेगा, वो आपका क्राउन एम्बेसडर बनेगा। जस्ट ज्वाइनिंग पीपल इज सो इजी यार, कौन सी बड़ी बात है? बट ज्वाइनिंग देम, ग्रोइंग देम, ज्वाइनिंग इज अ वेरी इजी थिंग, बट ग्रोइंग देम इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपको पता है लोग आपके टीम में क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा वो ग्रो कैसे करेंगे। भाग तो रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं गलत दिशा में भाग रहे हैं? गाड़ी तो मूव तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी को धक्का दे दे के मूव करना हो रहा है। इंजन ही ठीक नहीं है तो कितना टाइम धक्का दे दोगे? मसल में दर्द हो उस टाइम थक जाओगे। इंजन को देखो, गड़बड़ देखो, इंजन को, इंजन का गड़बड़ देखो। अगर गड़बड़ इंजन में है तो बैटरी को चार्ज देके नहीं होगा, कुछ टाइम चलेगा फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम आपके इंजन में कोई अंदर जगह में था। सो एल्कालाइन बॉटल पे आते हैं। चलिए, आपको अनजान सर एल्कालाइन बॉटल बोल रहे थे ना। आई कम टू दिस फाइनल टॉपिक। हमारा एल्कालाइन बॉटल अभी तक कितने लोगों ने पिया है, यहाँ पे बताइए। मैं 2 सवाल पूछूंगा, तीसरा मैं बोलूंगा। कितने लिखो यार, मैं तो सबको कैमरा में नहीं देख सकता क्योंकि मेरे को 4 स्क्रीन दिखता है मैक्सिमम। कितने लोगों ने पिया लिखो यार। मैं इतना बकबक कर रहा हूँ, 2 टाइप नहीं कर सकती, या नो, वाई ये नो। आजकल लोग यस भी नहीं बोलते, हम अमरीकी बन गए। या मैं जैसे लोगों को गाली दे रहा हूँ क्या? या गाली जैसा लगता है सुनने में, यस बोल दो अच्छे से। इतना भी आलसी लोग, या नोप, मतलब जैसे कोई माँ बहन उठा के गाली दे रहा है किसी को, ऐसा वाला सुनने में लगता है कभी कभी। तो ठीक है, आपने से कितने लोगों ने पिया है बताइए। Who have taken alkaline bottle and drink with the alkaline bottle? पहले मैं थोड़ा रेशियो जानना चाहता हूँ। यस सर, मी सर, नो। ठीक है, जिसने नहीं पिया नो प्रॉब्लम। मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने यहाँ पे एल्कालाइन बॉटल खरीदने का टॉपिक नहीं है। आप मत सोचिए सर एल्कालाइन बॉटल खरीदने के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं, मेरा सांप पकड़ रहा है, मैं पूंछ पकड़ रहा हूँ, मुंडी पाद में आता हूँ। आई एम यूज बिफोर 9 months सर। ओके, नो डॉक्टर, नो सर, नो। अगर नहीं खरीदा देयर इज नो प्रॉब्लम, बोलने भी नहीं और आप खरीदो, कब बोला? अब बस लिखिए हाँ इतने लोगों ने नहीं यूज किया, इतने लोगों ने नहीं यूज किया। सो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल ने एल्कालाइन बॉटल नहीं लिया। मैं आपको कारण भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप में से बहुत लोग ज्वाइनिंग किए होंगे ऑडियंस में, तो आपको शायद एल्कालाइन बॉटल आसपास दिखा नहीं होगा। उसका जो मैं ट्रेनिंग करता था या कुछ हेल्थ एजुकेशन करता था, नहीं दिखा होगा। कोई गलती नहीं आपका, मतलब आप ऐसा मत सोचिए मैं क्या सोचूंगा, लोग क्या सोचेंगे। मैं जस्ट जानना चाह रहा था कितने लोगों ने यूज किया है, तो बहुत कम लोगों ने यूज किया है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यूज करने वाले के ऊपर सवाल है। जिन लोगों ने यूज किया है मैं उनको ये सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज वो लोग आंसर दीजिए। आप में से जितने लोगों ने एल्कालाइन बॉटल यूज किया है, यूज करने के बाद आपको रिजल्ट आया है, यस आप यस ही लिखोगे, इसलिए मुझे वो आंसर नहीं चाहिए। मेरा जो सवाल है इसके बाद, आप में से जितने लोगों ने खरीदा